Assalamu alaikum, Aisha. Hope you're doing great. Salam, I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking our time. I think we both know the main agenda of having this session is to get as much knowledge from the industry professional. So before I proceed to the pointers and the discussion, I want you to introduce yourself. I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, if you can tell me about yourself, what's going on, how's everything, how's work and everything. Mhm. Thank you for giving me this opportunity. And I would start by introducing myself to the people who doesn't know me that I am Aisha, and I was born in Saudi Arabia and then raised in Pakistan. Currently, I'm living here in UAE. I am working as a product designer at Mashrik Bank through Systems Limited. My background is actually in software engineering, and over time, I transitioned into design. And yeah, here I am, as you said, that I'm here to share my journey, my story, my design. So how I went from career confusion to finding my path in design, studying in US, and eventually moving to UAE to work in the tech. So I think just I'm just hoping that if any one of you can uh, learn something from it, get inspired from it, that would be a win for me. I'm pretty much sure a lot of people will learn from it because starting off, there are very few people who have experience from different region. Okay, you born in Pakistan, so you born in Saudi, then you moved to Pakistan, then you went from then you went for your education for US, and then you come back to UAE. So Yes. the first thing that I wanted to discuss is how was the academic circle that you're on? Like you starting off, Dolo Pakistan se bahar open to be very specifically, they really wanted to go out and work for any other country. In any other country, sometimes it's UAE, UAE पहले लोग काफी आसान था. Usually people usually want कि यार वो UAE जाएं. ठीक है, but can you share me your overall journey, academic कैसे रही? Why you shifted from Saudi to Pakistan, then Pakistan to US, then US to UAE? How's the overall journey ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके साथ रियलिटी में है क्या-क्या चीज़ें? Yeah. So, Saudiya mein, I was born there, but then the education system is not that up to mark, or agar hai, to that's pretty expensive. For like a lot of people cannot bear that. So I believe ke wahan par phir hum logon ne move kiya to Pakistan from there for the education purpose. और फिर पाकिस्तान में आई हैड माई होल चाइल्डहुड वहीं रही और क्या कहते हैं व्हेन आई डिड माय इंटर इन प्री इंजीनियरिंग आई वुड से अबाउट द एजुकेशन इन पाकिस्तान आई कैन से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक गैप है इनटू दैट करियर गाइडेंस मैं बहुत सारे लोग इस चीज़ में रिलेट करेंगे कि हाँ, बा हो क्या रहा है बेसिकली और अभी भी मैंने देखा है कि ये चीज़ होती है फैमिलीज़ में कि व्हाटएवर इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ पीपल टेंड टू फॉलो दैट दैट यार डॉक्टर बनना है, सब डॉक्टर बन रहे हैं तो ठीक है तुम भी डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग चल रहा है तो फिर वो सही है। अब देयर इज़ अ बूम ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग सो एवरीवन वांट टू गेट इनटू दैट but and I did face that ठीक है I got lucky into that के before getting into my university I had a trip to US मेरी sister वहाँ होती हैं so I went there my brother-in-law used to work at Netflix at that time so we had a conversation about it he showed me his work he showed me his workplace we went to Facebook Google YouTube headquarters we met some people and discussed how their life is how they work what are the opportunities they have and a bit about it so like I got pretty fascinated by all of this and to be very honest I have this thing in me that I observe things a lot so when I from Pakistan when I went to US it was just a trip basically for like 2 to 3 months but मेरी observation was on to उनका metro system कैसा है कि क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं एक बेसिक ग्रोसरी करते वक़्त देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू एडवांसमेंट्स they have been using and I liked it I mean I was like yeah this is daily life things these are so basic or we can use it in our countries as well so
उसके लिए ना वो मेरे लिए बहुत मतलब अमेज़ किया था मुझे एंड आई बिलीव कि यार मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है। मैं वापस आई पाकिस्तान से एंड आई रिसर्च्ड अ बिट अबाउट इट। मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए उसके लिए और क्या कहते हैं, इस करियर का पाथ क्या होगा आगे जाकर प्लान करना था। तो आई डिड माय रिसर्च एंड देन आई स्टार्टेड विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माय बैचलर्स। While I was doing that, when I was about to graduate, I realized कि tech में भी there are like so many different directions. Some of my friends are going into QA. I was doing the development and designing at the same time, and I was juggling in between कि यार क्या करना है। अब जब आपका एजुकेशन ख़त्म हो रही होती है और आप करियर साइड पे आ रहे होते हो, ये तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत डिफरेंस है टू जो हम पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकल हो रहा है, जो लाइफ में है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस देयर। तो वो चीज़ जब देखी तो फिर I always follow some global leaders, तो I started following them और I also got to know कि यार आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको फर्स्ट जॉब चाहिए तो you should have a portfolio, you should have something within yourself जो आप दिखा सको कि how you think, how you solve problems because like उसके बगैर तो you won't get into that industry. जो एजुकेशन में मतलब आई वाज़ हैविंग रियली गुड ग्रेड्स बट दैट वाज़ नॉट इनफ अनटिल अनलेस आई हैव समथिंग जो मैं मतलब प्रैक्टिकली शो कर सकूँ कि यार ये मैंने चीज़ की भी है। तो उस वजह से आई देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो। आई गॉट माय फर्स्ट जॉब स्टार्टअप है शारिफ फैसल पे कराची में। आई गॉट इनटू दैट एज़ अ जूनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आई वर्क्ड देयर इन पाकिस्तान फॉर अ व्हाइल और कुछ टाइम काम करने के बाद आई वाज़ लाइक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी इज़ लाइक लिटरली अ वेरी वास्ट फील्ड, यू नो। तो उसके अंदर यूज़र एक्सपीरियंस एक साइड है, यूज़र इंटरफेसेस एक साइड है, कुछ विजुअल डिज़ाइनर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स होते हैं। सो यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड फिर जब उसमें मैं देखा और आई वाज़ ऑल्सो एज़ आई टोल्ड यू दैट आई वाज़ following all the global leaders, LinkedIn, Instagram, anyone can do that and I think you should do it अपनी फील्ड में जब हो तो फिर आपको अपने बेस्ट लोगों को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आई वाज़ लुकिंग इनटू देम एंड आई फेल्ट लाइक कि यार अभी भी आई एम स्टिल ऑन दैट सरफेस लेवल। आई हैवंट गॉट इन मच इनटू दैट डेप्थ, यू नो। और जो वो लोग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं दे आर फार डिफरेंट और फार मोर इन डेप्थ देन व्हाट आई एम डूइंग करंटली। तो um, when I looked into them, I always believe कि आप तभी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो when you live through into that environment. So you know you understand the culture, you understand how they work, उनका daily life क्या है, and then you understand के what is their thinking process, and this is how you learn more better than just you know looking online or something. So then I decided कि यार ठीक है, I want to go to US. US basically stood out because that is the technology hub. मैं पहले भी वहाँ जा चुकी थी. I had the experience. So I feel like यार this is the thing I want to go there. But उसके साथ-साथ a lot of South Asian families would relate to me in a sense कि यार लड़की के लिए it's not easy to you know just decide one day कि यार मुझे बाहर मास्टर्स करने जाना है and she went abroad to you know study. उसके साथ-साथ आपको अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है। और मेरी ये जिससे भी बात होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहती हूँ, अगर आपको लिटरली करना है ना, तो जस्ट डोंट से इट आउट लाउड लाइक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। यार मैं सोच रही हूँ कि यू नो जाके मास्टर्स कर लूँ। यू हैव टू डू द रिसर्च, यू हैव टू हैव ऑल द आंसर्स, यू नीड टू convince your family, you need to show them that you are capable enough to do that, and only then they'll you know trust you and they'll send you to the other country all alone doing that. My parents are alhamdulillah very supportive in that manner, but obviously I still remember my mother once said that ठीक है जाना है यूएस तो you can only go to the place जो तुम्हारी सिस्टर के नियर हो। सो नो माय ऑप्शंस गॉट वेरी लिमिटेड कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी सिर्फ वहीं सर्च करनी है जो मेरी सिस्टर के घर से करीब होगी। तो ठीक है, आई वाज़ लाइक ओके दैट्स फाइन क्योंकि ऑब्वियसली यू नो यू हैव टू कीप द बैलेंस, यू कांट जस्ट से कि नहीं जो मुझे करना है वो आप हर मेरी बात मानो, यू हैव टू कीप
the respect as well. And you'll be like, I'll be like, okay, I'll find the universities, I'll get the acceptance letter. They'll be like, हाँ ठीक है, once you get the acceptance letter, once you get everything sorted, then we'll talk about it. It's like, okay, I did all my research. The paperwork is literally so hectic. और वो सारी चीज़ें की, गिव द इंटरव्यूज़ और फिर आई गॉट द एडमिशन फ्रॉम सच ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ और उसमें आई चोज़ टू गो टू CSU East Bay, California State University, and there I was choosing interaction design and interactive art क्योंकि like I was looking after their course curriculum and their alumni, their future and everything. So and also that was a STEM major. So इस वजह से I chose that university. हाँ, I would also want to add into that कि it's not just कि मेरा direct first was to go into US. सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में research की थी कि मैं वहाँ masters कर सकूँ into this career field और मैं वहाँ इसको education ले सकूँ. But then आई डोंट नो अभी अब तो फिर इस फ़ील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, बट उस टाइम पे यूआई डिज़ाइन वाज़ नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज़्ड उस तरह से और उसके ऊपर लाइक अब अभी भी बहुत कम ही कोर्सेज़ होंगे, लेकिन मास्टर्स नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली फोकसिंग मेनली ऑन दिस डिज़ाइन फ़ील्ड। तो फिर आई हैड द ऑप्शन ओनली टू गो अब्रॉड। वहाँ गई तो education system is like completely different to what we are learning here in Pakistan. They only talk about practical things. They talk about implementation. Whatever you are learning, you have to implement it and you have to show them कि आप जो बात कर रहे हो वो practically possible भी है या नहीं. It's not just the books that you're reading and it's not just the things you say. So and then there are insanely smart people from different backgrounds. You have to compete with them. You have to fit into those people. Their culture is different. Then there is some language barriers. कोई कहीं से आया है, उसकी अपनी different language है, अपनी thinking process है, different है. You have to like fit into that. You learn that how to network, how to pitch your ideas, or how to collaborate with these kind of people. And then at the same time, Pakistan में I used to be very lazy to be very honest, and then वहाँ जाके you have to do everything on your own और you need to अच्छा one more thing that I did was before going to US, when I was researching about this university, I saw that many of our students are doing the part-time job, and I realized कि हाँ यार पेरेंट्स की तरफ से दे आर स्पॉन्सरिंग और व्हाटएवर, बट यू नीड टू हैव योर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लाइक यू हैव समथिंग इन योर हैंड कि यार आप इसके थ्रू कुछ कर सको। You can't always ask from your parents or from anyone who's sponsoring you कि यार I need money. लोग scholarship पे भी जाते हैं, but then also then again you need some financial independence in yourself. So for that मैंने क्या किया था कि पाकिस्तान से ही इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे ऑन कैंपस जॉब्स के लिए। और बिकॉज़ आई वाज़ as I told you that I was working on my portfolio and everything, so I had that experience, so I got into graphic designing thing, part-time job. And I was like pretty satisfied कि चलो मेरी career से it's like very similar और मैं उसी चीज़ में रह रही हूँ and I have something in my hand. तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था एंड आई वुड से दिस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हू आर गोइंग अब्रॉड, प्लीज़ डू योर रिसर्च बिफोरहैंड, पहले से ये चीज़ें करके रखो बिकॉज़ आई हैव सीन मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे व्हेन दे वर इंटरव्यूइंग देयर और दे वर स्टार्टिंग टू लुकिंग फॉर जॉब्स इवन ऑन कैंपस, इट वाज़ वेरी हेक्टिक फॉर देम कि यार आपने साथ में स्टडीज़ भी करनी है और आपने ये अपना अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपने इंटरव्यूज़ देने हैं और ये सब की भी तैयारी करनी है। इट गॉट प्रीटी हेक्टिक फॉर देम। तो उस पार्ट में वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पहले से कर लिया था, तो बट देन अगेन इस तरह के लाइफ़स्टाइल से वो एकदम से लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 9 टू 5 9 टू 3 मैं जॉब कर रही थी और उसके बाद क्या कहते हैं मैं अपनी क्लासेस ले रही थी एंड देन हर 2 टू 3 मंथ्स बाद देयर आर एग्ज़ाम्स दैट यू हैव टू गिव। तो वो पूरा टाइम मेरा यूएस का इस तरह रहा। It was pretty good. It was literally pretty good. I've learned a lot, a lot. मतलब I think मेरा soft skills में भी बहुत major difference आया because every time you are just standing in front of your
people in front of your colleagues and you'll be like pitching something. बहुत नर्वसनेस थी, चीज़ें नहीं आती थी, बट देन दिस इज़ हाउ यू लर्न। तो वो चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स आई कुडन्ट कंप्लीट माय डिग्री एंड देन आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान। बट मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने करियर में नहीं आने दिया या अपनी स्टडीज़ में। आई वाज़ प्रीटी ओके दैट इट्स ओके, आई एम गोइंग बैक। लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है आई इम्प्लीमेंट इट एंड मेरे लिए अच्छी चीज़ ये रही कि पाकिस्तान में मुझे इस मास्टर्स की इवन इफ मैंने हाफ़ ही किया बट उसकी डिग्री से बहुत एज मिला था। एंड व्हेन आई केम बैक तो फिर फ़ौरन ही मुझे एचबीएल से अपॉर्च्युनिटी आई थी एंड आई टुक दैट। हबीब बैंक लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स ऑफ पाकिस्तान। आई वेंट देयर और अच्छी बात ये थी कि व्हेन आई गॉट इनटू इट तो दे वर रिवैम्पिंग देयर होल प्रोडक्ट सिस्टम। So they give me that leverage, that they give me that opportunity कि यार you work on the design system, you will revamp it and you will set the guidelines and tones how will the product be। और um, उसमें आई डिड प्रीटी गुड कि बिकॉज़ ऑफ दैट दे गिव मी द ग्लोबल प्रोडक्ट्स एज़ वेल। मैंने एचबीएल यूएई के ऊपर भी वहीं पर रहते हुए काम किया, एचबीएल मालदीव्स के ऊपर भी वहीं रहते हुए काम किया। और बिकॉज़ आई हैड दैट एक्सपोज़र टू टॉक टू डिफरेंट कल्चर्स और उधर किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से डील करना है। तो उस वजह से आई गॉट दैट अपॉर्च्युनिटी। आई डिड प्रीटी वेल, आई लर्न्ड अ लॉट। अम और फिर क्या कहते हैं, आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम सिस्टम्स लिमिटेड और वहाँ पर भी दे वर लुकिंग फॉर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। सो आई बिलीव ठीक है, माय करियर पाथ इज़ गोइंग वेल। देन आई गॉट इनटू यूआई यूएक्स, आई वांटेड टू गो इनटू प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो वो उस साइड पे मूव हो गया। मेरी यूज़र रिसर्च साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुझे उसी चीज़ के लिए प्रोडक्ट्स मिलने लगे, उसी चीज़ के लिए मेरी जॉब उसी तरह फ्लो होने लगी। देन इन सिस्टम्स लिमिटेड आई वाज़ हायर्ड एज़ कंसल्टेंट यूएक्स डिज़ाइनर। तो जितनी भी डिजिटल बैंक्स हैं, व्हाटएवर क्लाइंट्स दे गॉट, तो उसके लिए आई हैड टू डील, आई हैड टू plan the workshops for them, different kind of workshops, चाहे वो डिस्कवरी फेज़ हो, व्हाटएवर इट इज़। सो वो भी मुझे काफ़ी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्रॉम देयर आई गॉट दिस मशरिक बैंक फॉर यूएई। तो it was going pretty amazing and then I got married। then and then I have to come to UAE। और फिर व्हेन आई केम हियर टू यूएई तो अभी तक जितने फेजेस थे, अब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बहुत रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, इफ आई गो अब्रॉड। UAE is very different. So the main reason of asking you this question, and you have shared the whole overall journey, is because when you start living in different countries have different mindset with respect to academic and professional career is totally different. Yes, I totally appreciate those people who usually take those decisions on their own. कि ठीक है, I have to do this, and I'm only gonna do this. Neither way, if I have to do it from Pakistan or from any other country. With respect to आपने मास्टर्स करा, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आप जब अपना रीजन चेंज करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, because don't in UAE, to be very specific, just for the audience, me and Aisha lives in Dubai for now. So in UAE, to be very specific, UAE is a very different mindset. आप लोगों को लगता है कि UAE बहुत आसान है, but when yeah, UAE gives you a strike, it's give you a strike for a six. So आई टोटली अंडरस्टैंड कि यूए आप जब यूएस में रहे, आपने यूएस में बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं और वो कहीं न कहीं कंपाइल हो रही होती हैं। आप बिकॉज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट nowadays I see people who are more of like कि वो थोड़ा-सा ना उनके पास कोई गाइडलाइन या कोई पाथवे नहीं होता। So what I see people who are graduating in media sciences and they think graphic designing, UI, UX designing, product designing all are same. But you need to understand when you are into user research, when you are into user experience and product design, it's more related towards psychology. It's not about just designing a product. It's not about just problem solution नहीं होती. It's about what's the right decision to take and how people will gonna have it. So I'm pretty much sure you have covered a lot of your experience academically.
and I'm happy that you are in UAE, and I'm pretty much sure UAE is a very bit different. UAE startup over here is a kind of different. So when you are living outside Pakistan, just abhi aapne bataya, living outside Pakistan is a different ballgame because you need to do your course, you need to do your laundry, you need to make food, Yes. you need to go out, you need to work, you need to do a lot of things. So I think overall career, we discovered a lot of things. Just to move to another point. Now you are in UAE. Yeah. Yes. I wanted to know what change do you see when because to be very honest, what I see, you born in Saudi, but Saudi nowadays, Saudi अभी शायद आगे जाके 5-6 साल में it will take place. दुबई की जगह लोग सऊदी जाएंगे, रियाद developing a lot of different things, IT sectors वहाँ पे बहुत सारे बन गए and people are now moving towards Saudi. But Saudi is a bit slow. In UAE, everything is going on a 120 speed पे और हर चीज़ बहुत तेज़ होती है. So you need to cope up with that thing. With respect to when we are working in UAE, we need to understand that maybe you are the only one person whose nationality is from Pakistan. You will be seeing people from Europe, you will be seeing a lot of people from India, you will be seeing a lot of different people from different countries, but Pakistan अभी भी थोड़ा-सा कम दिखता है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू कि हमें ये समझना होता है कि वीज़ा से श वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द ओवरऑल सिस्टम वर्क, ठीक है? यू कांट वर्क इन यूएई विद द माइंडसेट जैसा पाकिस्तान में काम कर रहे हो। True. But then there is a totally what you say totally प्रोफेशनल करियर का पाथवे चेंज हो जाता है। आपको पता चलता है ठीक है फाइन, आइडियाज़ कैन बी लाइक दिस, अचीवमेंट्स क्या होती हैं, पाकिस्तान में काम करने का थोड़ा अलग अलग तरीका होता है। सो अभी मुझे बताओ आयशा कि हाउ लॉन्ग you're here in UAE? यार अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई केम हियर इन फ़रवरी दिस ईयर। ओके, सो फरवरी, सो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप अभी आए हो फ़ेब से लेके आई थिंक इट्स जस्ट लाइक 2 मंथ्स। रोज़ हाँ। So how you are seeing UAE? क्योंकि I'm pretty much sure when you move to UAE, then first thing people start asking you, यार कैसे गए हो? हमें भी आना है। I know that because when I came to UAE last year, so it's more likely a lot of people usually think कि UAE आना is the biggest step. But what I personally believe, UAE आना is just a first, वो लेटर का पहला स्टेप तो होगा, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि ओके नाउ दिस इज होल मैस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपको कहाँ रहना है, ट्रैवल कैसे करना है, कहाँ जाना है, एंड इट्स ऑल लाइक ऑटोमेटेड। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं 7 बजे उठूँगी एंड आई कॉल माय ड्राइवर और एंड आई कॉल माय डैड एंड ही विल गोना ड्रॉप मी टू द ऑफिस एंड आई विल कॉल हिम एट 6 पीएम एंड ही विल कम एंड पिक मी फ्रॉम शायरा फैसल। देन यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेट्रो कैसे चलती है। सो ये 2 महीने का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? What are the key pointers that you wanted to highlight the people who wanted to come in UAE? And what are the key pointers that you think यार लोगों को इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए स्पेसिफिकली इन यूएई, ताकि उनको थोड़े टाइम के बाद उस चीज़ में मसले ना हो? ठीक है। तो पहले तो आई विल स्टार्ट विद कि ये जो मेरा मेरा पूरा ट्रांज़िशन था ना, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत ज़ोर से सीखी दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। आई थिंक वो सब में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन से निकालो एंड बी इन डिफरेंट प्लेसेस, मीट न्यू पीपल और जहाँ पे जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, यू विल लर्न अपने ही आप के बारे में कोई ऐसी नई चीज़ जो अभी तक यू नेवर न्यू। तो वो वाली चीज़ ना आपको हर चीज़ में हेल्प करती है। आई डोंट नो इफ पीपल वुड बिलीव मी और नॉट बट आपको वो करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि यार किस तरीके से आपको किसी से बात करनी है, कभी चैलेंजेस आते हैं तो किस किस तरह से आपको हैंडल करने अपने बारे में जितना ज़्यादा पता होगा ना उतने अच्छे से आप ये चीज़ ट्रांज़िशन कर सकोगे। अबाउट द यूएई थिंग कि यार बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं विज़िट वीज़ाज़ पे लोग आते हैं कि यार 2-3 महीने वी विल ट्राई, कहीं जॉब लग गई तो दैट्स वेल एंड गुड। अ, यहाँ पर जॉब के लिए भी आई हैव सीन कि बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं। देयर देयर आर स्टार्टअप्स
who will give you jobs। और हमारा ये पाकिस्तानी उसकी वजह से, नेशनैलिटी की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू इवन गेट इनटू देयर। बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस तो आप छोड़ ही दो, बट विल लाइक स्टार्टअप्स में भी। एंड देन आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड में, लेकिन फिर वहाँ पर एक बजट, ठीक है, which was gonna be difficult for you, क्योंकि if they are paying you, they're gonna expect a quality work, a punctuality from you, और एक एक प्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम योर साइड। एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक कि यार आज लेट हो गया, आज ये हो गया। हर चीज़ पे यू हैव टू वर्क, एंड देन यू गेट अ लिमिटेड बजट। उसके अंदर आपको अपने रहने का करना है, अपने खाने पीने का करना है, अपना ट्रांसपोर्ट का करना है। यहाँ पे आई हैव सीन के 6-7,000 की सैलरी के ऊपर भी लोग रह रहे हैं, अपना गुज़ारा कर रहे हैं, एंड देन देयर आर पीपल हू आर अर्निंग 25 टू 30,000 दिरहम्स, वो भी कर रहे हैं। तो यू हैव टू लर्न कि यार मैं किस तरीके से, मेरा क्या बजट है, मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते लोगों से, द बिकॉज़ अभी मुझे 2-3 महीने हुए हैं और मैं आई हैव स्टार्टेड यू नो मेकिंग अ नेटवर्क, और लोगों से थोड़ी दोस्तियाँ करना शुरू कर दी हैं। हर किसी का लाइफ़स्टाइल इज़ लाइक वे डिफरेंट। वो अपने उस पे टर्म्स पे रह रहे हैं कि अच्छा यार ठीक है, मेरा इतना बजट है। किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी के ऊपर नहीं है, किसी को घर भेजने होते हैं पैसे, किसी को नहीं भेजने होते। तो यू कांट बी लाइक यार ये तो इतने मज़े कर रहा है, मुझे भी इस तरीके से करना है। यू कांट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आपको ना अपना एक सेट गोल होना चाहिए आपका, आपका एक पाथ होना चाहिए व्हिच यू नीड टू फॉलो, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपने क्या करना है। जॉब्स के लिए अ, अभी तक जो मैं रिज़्यूमे मतलब जो भी मैं बना रही थी, जो मैं उसके ऊपर काम कर रही थी, कवर लेटर्स, उसका उसका जो लेआउट है दैट्स डिफरेंट। जो मैं यूएई में ट्राई कर रही हूँ दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आई हैव टू रीवर्क ऑन एवरीथिंग, ठीक है? यहाँ पर क्या कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर है। अ लॉट ऑफ कंपनीज़ आर लुकिंग फॉर द पीपल जिनको अरेबिक लैंग्वेज आती है। सो अभी तक हमने ये चीज़ नहीं सीखी थी, बट कहीं-कहीं पे तो आप सिर्फ़ इसीलिए नहीं रिक्रूट हो सकते बिकॉज़ देन यू डोंट नो द लैंग्वेज, ठीक है? तो आई स्टार्टेड लर्निंग अ फ्यू वर्ड्स एक्चुअली, कि ठीक है ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज़ दैट्स द नीड ऑफ दिस प्लेस, सो यू हैव टू। तो वो वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। यहाँ का हायरिंग सिस्टम इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। एक्सपेक्टेशंस, वर्किंग कल्चर इज़ डिफरेंट, और पोर्टफोलियो प्रेफरेंसेस आई टोल्ड यू कि वो डिफरेंट है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू अडैप्ट एवरीथिंग, कि क्या चल रहा है। यू हैव टू understand the place, the culture, their behavior, the context, and then you can get into it. Or even if you get your first job, so be it's not easy because these startup things यहाँ पर इस तरह का नहीं है कि वो कब आपकी जॉब चली जाए, बिकॉज द मार्केट इज सो कम्पेटिटिव। आपको रिप्लेस करने के लिए 10 और लोग खड़े हैं। और That's the main reason. Sorry to interrupt you, but that's the main reason UAE has a different mindset because यहाँ पर आके आप सबसे पहले overwhelm हो जाते हो. You yes, will gonna see people on the same designation earning 2-3 times more than you, and there are people who are at the same position and earning less than you. And then you need yes, to understand the fact UAE is more likely आप एक गली change कर दो and you are seeing Mercedes, next गली you will be changing and you will be seeing Lamborghinis. But this is more likely the upper class of UAE. But if you can yes, go into the bottom of it, you understand that there are a lot of labors include there. So you need to understand the fact कि आपको overwhelm नहीं होना होता सबसे पहले. The main reason of asking you because मेरा टाइम फ्रेम तो ये बहुत पहले गुजर चुका था बट आई रियली वांटेड टू सी कि 2025 में जो लोग आ रहे हैं उनका टाइम फ्रेम कैसा सो इट्स नॉर्मल गेटिंग योर थिंग्स गेटिंग योर शिट राइट इज द फर्स्ट थिंग यहाँ पर होता ये है कि लोगों को ये लगता है लोग जब यूएई में आते हैं दे थिंक दैट हायरिंग प्रोसेस इज द सेम एज इन पाकिस्तान so number one, what I wanted to highlight, and maybe it will help you as well, is whenever people come to me and they're like, यार we wanted to come to UAE. मैंने कहा यार देखो आपको अपने ना फाइनेंशियल सेट करने होता ठीक है. If you are thinking कि earning 6,000 dirham is good for you, ठीक है,
इफ यू थिंक दैट, ठीक है, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। यू गो ऑन अ रेस्टोरेंट, यू जस्ट eat one time meal and you will be giving 30 dirhams per meal. Then you need to understand the fact that so creativity is basically direct. What I personally believe, creativity is directly proportional to फाइनेंस, ठीक है? आपके पास पैसे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी। भूखे पेट में कोई क्रिएटिविटी काम नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, इन यूएई पीपल यूजुअली कम एंड थिंक लाइक कि वो आएँगे और वो कोई भी जॉब कर लेंगे। The market is totally different. The thing that you just highlighted is IT sector in UAE is like very unstable. ट्रू। And you need to understand the fact कि आप जहाँ काम कर रहे हो, what outcomes that you are producing. Is it something that is gonna last for years or it is something that's last for few days? If it lasts for few days, then you will be finished in few months. Because um, uh, यहाँ पे सबसे सबसे बड़ी तलवार होती है वो ये होती है, you will be only here, your job is directly proportional to your Emirates ID. And you need to understand no job, no ID, and you will be getting out of it. Okay. So understanding the fact, my main reason is to ask you is ताकि पता चले यार कि इतना आसान नहीं है. If it's that much easy, मतलब आई कैन लिटरली से जब ये मशरिक में भी मैं काम कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि अच्छा ठीक है सिर्फ डिज़ाइन है तो चल जाएगा। आई हैव देयर इज़ लाइक अ लार्ज स्केल ऑफ हायरार्की, ठीक है? एक चीज़ को इतना सा चेंज भी अप्रूव कराने के लिए यू हैव टू गेट योर फैक्ट शीट रेडी। क्या बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस आप कौन-सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और ऑडियंस भी यू हैव लाइक अ बिग नंबर और फ्रॉम लिटरली सो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स एज़ यू सेड। तो आपको सबको टारगेट करना है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड देन यू हैव टू वर्क थ्रू थिंग्स जहाँ आप उनको बता सको कि व्हाटएवर यू आर पिचिंग, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू इज़ वैल्यूएबल एंड इट विल इम्पैक्ट पीपल। ये वाक़ई में इम्पैक्टफुल है, नॉट जस्ट फॉर अ टेम्परेरी टाइम पीरियड, इट वुड बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तभी आपकी बात को सुना जाएगा बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू यहाँ पर हर कंट्री के बेस्ट पीपल आए हुए हैं लाइक इन देयर I won't be saying, yeah, देखो, the point is we need to understand the fact कि पाकिस्तानियों को ना एक मसला है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ इनको बड़ी आसानी से प्लेट में मिल जाएगी, ठीक है? So number one thing is reference. Reference is the first thing if you wanted to get a job. ठीक है? No one is gonna understand. यहाँ पे not only Pakistan, there are like multiple nationalities. There are like Pakistan, Indians, Nepali. They are like people from Europe who are coming here just to enjoy the weather, just to enjoy things. They wanted to live into a tax-free country, and this is what it is. So you need to understand you can't lack in anything. ठीक है? या पाकिस्तान में मे बी लैकिंग कैन वर्क. नंबर सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बजट. पाकिस्तान में जितने के सालों के या पूरी कंपनी के बजट होते हैं उतने यहाँ महीनों के बजट होते हैं, ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, यहाँ पे आपको हर चीज़ की हायरार्की, हर चीज़ को इसलिए फॉलो भी करना पड़ता है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड जो चीज़ आप कर रहे हो वो किसी बड़े रेवेन्यू पे मिलियन या बिलियन डॉलर्स पे चेंज होगी, ठीक है? सो व्हेन यू आर डूइंग इनटू दैट मच स्केल तो आपको अपने ऊपर भी काम करना होता है। इट्स नॉट अबाउट इफ यू आर गुड इन यूजर डिज़ाइन, इफ यू आर अगर मैं बात करता हूँ इफ यू आर गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, यू वोंट सर्वाइव। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, आप टीम के साथ कैसे काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन क्योंकि जिनसे आप बात करें उनको सिर्फ़ इंग्लिश आती है, ठीक है? यस। उनको इंग्लिश आती है तो ईदर वेज़ इट्स नॉट लाइक कि आप उनको चेंज कर सकते हो, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आई टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट मेबी like 5 out of 10 jobs you gonna be disqualified just because they are looking for Arabic people. Not Arabic people, मैं लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार अरेबिक क्यों सीखें? The point is if you're working a team with 100 people, ठीक है? अगर उसमें से 50 लोग अरेबिक हैं और 50 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इट विल बी गुड टू हैव कि अगर आपको अरेबिक आएगी तो आप पूरी इंडस्ट्री को समझ सकते हो, पूरी कंपनी को समझ सकते हो। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि यार people come to me and ask me they wanted to switch, they wanted to come in UAE and they wanted to explore. Coming to UAE and exploring, it's not just a piece of cake. You need to understand the fact कि जब आप यहाँ आएँगे, the chances of getting a job is 1%. ठीक है? In 3 months. I see people who are waiting for their next job
getting laid off and waiting for their next job for at least 6 to 7 months. Okay? And then you need to also understand the fact, where are you living, your cost expense, your food expense, your traveling expense, XYZ amount will be required just to have it. तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, वो कभी मत आए भाई। या वो तब आए जब उसको पता हो कि उसको वापस नहीं जाना। ठीक है? तो ये तो यूएई का एक्सपीरियंस बड़ा इम्पोर्टेंट था, ये हमने बात करी एंड यू हाइलाइटेड फ्यू गुड पॉइंटर्स ताकि लोगों को पता चले। नाउ कम टू अनदर फैक्ट, जो कि डिज़ाइनर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं, वो हमें मौत आती है करने में, दैट इज़ पोर्टफोलियो। ठीक है? व्हाट आई सी पीपल, दे डोंट दे डोंट डू थिंग्स, दे डोंट डू पैशन प्रोजेक्ट्स, they don't know how to sell। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, in our field, it's not like a bank job where you go, count the cash, and come back home. It's not a 9 to 5 job. Maybe sometimes you need to understand कि अगर किसी प्लेटफॉर्म या किसी पेज या किसी लैंडिंग पेज या किसी प्रोडक्ट को लाइव होना है 12 बजे, then you need to be on your toes. You need to understand कि डेडलाइंस किस तरीके से काउंट होती है। You need to understand कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट is one of the things how you gonna share it। Yeah. इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा एक और चीज से। It's called personal branding. A lot of people usually hesitate in Pakistan getting on different events. अब तो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं, लोग जा रहे हैं। देयर लाइक फिक जैम्स होते हैं, उसके बाद कैटरिंग स्लैब अच्छे इवेंट करा रहा है। ठीक है, बट देयर इज स्टिल पीपल हु थिंक कि यार आपको अपने बॉक्स से बाहर निकलना पड़ता हो। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। So tell me about your experience. What's your advice to the people who are living in Pakistan who wants to move out? What are the key pointers that they need to make in their portfolio? What are the key pointers they need to make in their personal branding? What are the overall thing? क्योंकि देखो, education is the simple thing. Education ठीक है, you are a graphic designer, you know how to do graphic designer. You are a product designer, you know how to do product design. But उसके अलावा भी कुछ स्किल सेट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। Yeah. ठीक है, सो व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दोज़ थिंग्स? So, that I would say कि when I was in these different places, so I have learned that every place, either Pakistan, US, UAE, whatever, has its own design language. I'll talk about in terms of design. Has its own user behaviors, and even visual preferences are way different हर country में, हर audience की, whoever you are targeting, and what works in one place might totally flop in another, ठीक है? तो and that's when you realize कि design is not just about aesthetics, it is about understanding people, it is about understanding cultures and understanding the context, ठीक है? So you need to work on that first. You have to keep up with the research. जहाँ पर भी जा रहे हो, जिस कंट्री में भी जा रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिज़ाइन। कोई भी करियर आप जिधर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ के बारे में आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ क्या ट्रेंड है, वहाँ किस तरीके से हायरिंग होती है, क्या चीज़ें वो देख रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्या वो उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड देन यू नो द मोर यू नो देम, द मोर यू अंडरस्टैंड देम, उतना ही अच्छे से आप अपने आप को पिच कर सकोगे, ठीक है? बिकॉज़ यू विल टॉक ओनली अबाउट द थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर। तो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट रिसर्च, ठीक, वही वाली बात, ही वही जाना है, जो जॉब मिलेगी वो ले लेंगे। वो नहीं करना है, अपने करियर को लेके आपने बी सीरियस, और वो वाली होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से करके रखनी है। दैट इज़ द रिसर्च पार्ट, आई बिलीव कि बहुत ज़रूरी है करने की। एक और चीज़, अगर ये पूरी कन्वर्सेशन से किसी को लग रहा है कि यार यू नीड टू हैव अ फैंसी डिग्री टू ब्रेक इनटू यूएक्स, उसके लिए आई वुड से कि नो, यू डू नॉट नीड दैट। ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस जाओगे, मास्टर्स करोगे, तभी यू कैन ब्रेक इनटू द यूएक्स और अपनी फील्ड में आप एक अच्छे जगह पे पहुँच सकोगे, या आप यूएई आ जाओगे, दैट्स नॉट इट। इट शुड बी इन यू, ये इसके लिए आप अब का जो एरा है, आई थिंक
कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लिटरली चैट जीपीटी को बोलो कि एक्सप्लेन मी लाइक अ 5 ईयर ओल्ड, वो आपको इतना मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट उस लेवल पे ब्रेक डाउन करके समझाएगा दैट यू वुड हैव नेवर हैड दिस लेवरेज बिफोर। बट अब आप हर चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो टू दैट डीपर लेवल, ठीक है? यू कैन कनेक्ट विद पीपल। ये भी मेरी एक एडवाइस है स्पेशली टू माय पाकिस्तानी फेलोज़ कि मैंने जो देखा है, हमने अभी बात भी की, दे लैक इन द नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव। एज़ वी सेड दैट अगर यूए की बात करें हम, तो नेटवर्किंग और हैविंग द रेफरेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर। तो कनेक्ट विद पीपल, नो मैटर आप यूएई आ गए हो या नहीं आ गए हो। इट्स नॉट लाइक कि जब आपको ज़रूरत है यू आर जस्ट टेक्स्टिंग देम कि यार मुझे कहीं रेफ़र कर दें। यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप पहले से। टॉक अबाउट देम, टॉक जस्ट हैव अ वन ऑन वन कॉल। कोई 15 मिनट्स का टाइम आप माँग सकते हो किसी से भी, एंड पीपल वुड रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट मैटर। इफ दे नो कि यार इट्स नॉट जस्ट के इस बंदे को अभी ये रहा रेफर चाहिए, वो एक्चुअली में लर्न करना चाहता है, वो एक्चुअली में सीखना चाहता है, जस्ट हॉप ऑन अ कॉल विद देम फॉर अ 15 मिनट। टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, टॉक अबाउट हाउ दे वर्क, उनको क्या चीज़ अमेज़ करती है, व्हाट इज़ एक्साइटिंग टू देम, or learn about it, take pointers of it, and then start। कभी फिर आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, तो या आई हैव बीन वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो, कैन यू हैव अ लुक एट इट, कैन यू गिव मी सम फीडबैक ओवर इट कि यार इसमें क्या मैं चीज़ बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। द मोर यू टॉक टू पीपल, द मोर न्यू थिंग्स यू विल फाइंड आउट कि यार मैं इसको इस तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि it's a reiterating process, you can do it anytime। So I believe ये वाली चीज़ है जो I would say कि हर किसी को करनी चाहिए। पोर्टफोलियो is not a one time thing। I have also seen that कि एक बार आपने बना लिया, when you are like looking for job, start of your journey, and then you will be just उसी को आप आगे lifetime चला रहे हो कि I had this portfolio, I have seen the reasons that I haven't got the time to update it, I haven't got। टेक आउट सम टाइम, उसको एक प्रायोरिटी दो, बिकॉज़ people doesn't know you, people will only look at that one pager website and they wanted to see कि यार ये बंदा किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये किस तरीके से सोचता है। उसी की बेसिस पे यू विल गेट द ब्रेक टू वो एक इंटरव्यू के लिए आप उसके सामने बैठ सकोगे। मैंने देखा है कि जब आप एक बार इंटरव्यू में चले जाते हो, तो फिर आई थिंक आप काफ़ी चीज़ें समझा लेते हो, आप कर लेते हो, यू विल गेट इनटू इट। बट वो इंटरव्यू फ़ेज़ तक आने के लिए जो रिसर्च है, जो एफर्ट्स है ना, आई थिंक यू पीपल नीड टू फोकस ऑन दैट फर्स्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार आप आ गए हो, यू आर देयर टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर देयर टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। बट बिफोर दैट, जब वो आपका सिर्फ़ एक रिज़्यूमे देख रहा है, एक पोर्टफोलियो देख रहा है, यू आर नॉट देयर टू एक्सप्लेन एनीथिंग। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक-एक चीज़ जितना मतलब आप उसको अच्छा कर सकते हो ना, आई बिलीव पुट योर एफर्ट्स एंड टाइम देयर, देन यू विल easily get the interview calls, and then there is long process। फिर you have to work on your communication skills, your soft skills, और फिर वो सारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात है, आपके बिहेवियरल इंटरव्यूज़ होते हैं, यू हैव टू गेट इनटू दैट। तो that's a different scenario, but someone who is coming here and started looking for jobs, I believe they need to do a lot of pre-work on themselves, on the documentation they are going to show, because that's really important। And the other thing, as I said, that do a lot of networking, build relationships। LinkedIn is the best platform for that। There are people literally, they are they're saying it out loud कि यार हम आपको 15 to 20 minutes या 30 minutes देने के लिए तैयार हैं, come to us। There are people in that level as well, find them out and have a relationship, have a one-on-one call with them। लिटरली जो आपके जहाँ आपने जिस करियर में जाना है, फाइंड द पीपल हु आर बेस्ट इन दैट फेज़, और उनसे जो आप एडवाइस लोगे, बिकॉज़ दे हैव बीन थ्रू दोज़ फेजेज़ जिसमें अभी आप गुज़र रहे हो। लाइक एज़ यू सेड कि यार तुम्हारा मुझे पता करना है कि अब तुम्हारे लिए यूएई आके कैसा रहा एक्सपीरियंस, बिकॉज़ यू हैव बीन इन दैट प्लेस। सिमिलरली
अ लॉट ऑफ अदर पीपल वो स्पेस से गुज़र चुके होते हैं और वो आपको वो बताएँगे जो उनकी लर्निंग्स थी, जो चीज़ें उन्होंने गलतियाँ कर दी, वो आपको बताएँगे यार ये चीज़ मत करना, आई हैव लर्न्ड थ्रू दिस। तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। द मोर यू टॉक टू पीपल, द मोर यू लर्न। सो हाँ, आई थिंक दिस इज़ व्हाट मैं Agree, फील agree, agree on the pointers that you have shared. I think that's very helpful for overall people. We have covered a lot of things, Aisha. And thank you so much for your time. I personally believe if anyone wants to have any thought or any ideation, they can reach out to you. They can go on your LinkedIn and they can have a discussion over that. Please, please do. I'm open for that. Perfect. Thank you so much, Aisha. Thank you so much for your time. It's nice talking to you. Same here. Thank you so much for having